Hello everyone, a very good afternoon to everyone in this today's session. Today we are going to talk about ISC class 11th and 12th new poetry book. Okay, that is for your ICC means class 11th and 12th. The name of your poetry book is Rhapsody. Okay, so today we're going to deal with Rhapsody, the first poetry of Rhapsody, that is Abhisara the Trist, okay, which is written by Rabindranath Tagore. Okay, who is Rabindranath Tagore? No need to tell you, a very renowned personality of India, more specifically of Bengal, right? So, this is your English poetry book for your 11th and 12th class. Okay, the name of your poetry book is Rhapsody. Okay, and within Rhapsody, the first poetry, that is Abhisara the Trist. Okay, now before moving to the name, the meaning of the poetry, let's understand the meaning of your book, right? What is the name of your book? Rhapsody. Now, what is the meaning of Rhapsody? Okay, just think. What could be the meaning of Rhapsody? I don't think that you have heard it. Many of you heard it as well, or many of you don't know what is it. So the meaning of Rhapsody, okay? The meaning of Rhapsody is the feeling of excitement. Okay, the feeling of excitement, something which is having a very exciting things, okay, very enthusiastic things, the feeling of enthusiastic, the feeling of keenness, okay, the meaning of thrillness. These all are the synonyms of excited. Okay, so the feeling of excitement is known as Rhapsody. Okay, so your book, which contains a very interesting and exciting poems, is given the name here. Okay, so this is the meaning of Rhapsody. We have understood the meaning of Rhapsody is something very excited. Okay, something very excited. Okay, or something which gives us excitement. Okay, the feeling of excitement and joy, that is known as Rhapsody. Okay, now let's understood the meaning of our first poetry. Okay, this is also very strange, written by Rabindranath Tagore. Okay, Abhisara. What is the meaning of Abhisara first? Do you know what is the meaning of Abhisara? This is a Bengali word. The meaning of Abhisara is to spread brightness. Okay, what is the meaning of Abhisara? To spread happiness or to spread brightness all over the world. Okay, and what is the meaning of Trist? The Trist. The meaning of Trist is more like if we talk about the correct meaning of Trist, so the meeting of two fellow. Okay, the meeting of two fellow is known as Trist. So Trist is what? Trist is the meeting. Okay, मिलना. Okay, किसी चीज का मिलना, किसी दो लोगों का मिलना. Okay, उसे हम कहते हैं ट्वाइस. और मोर स्पेसिफिकली छिपकर मिलना. ओके, लाइक हिडन होकर मिलना, छिपकर किसी चीज किसी से मिलना इज the meaning of Christ. Okay, I hope now you understand the meaning of your poem means the meaning of Abhisara is to spread happiness, खुशियाँ बिखेरना, हर तरफ excitement, खुशियाँ बिखेरना. And the Christ, the meaning of Christ is to like meet with someone but in a hidden manner. Okay, I hope now you understand. Now in this poem, is this poem of a love, of compassion? No, this like it is of love and compassion, but not in that way which you all are thinking, right? यहाँ पे थ्राइस का मतलब है मिलना. तो क्या दो लवर्स का यहाँ पे मिलन होता है? नहीं, यहाँ पे दो लवर्स का मिलन नहीं होता है, बट हाँ दो लोगों का यहाँ पे मिलन होता है और उनके बीच में एक लविंग बॉन्ड बन जाता है. कैसा? एक रिस्पेक्ट का. ओके, एक रिस्पेक्ट का. दो दे आर टू टाइप्स ऑफ लव. द फर्स्ट is the love of which you show to your wife, to your loved one, like, right? And the next love which you show to your elder person, to your respectful person. Okay, like the love you show to your teachers, the love you show to your guest, the love you show
to the plants, to this environment, this nature, right? So there are two types of love. Okay, so the love which which make a bond of friendship over here. This is the meaning of love, right? So I hope now you understand what is the meaning of love. Okay, obviously it is written by Rabindranath Tagore. No need to tell who is Rabindranath Tagore, a very renowned person, very renowned personality of our India. Okay, obviously he is an Indian author, right? But more specifically, he is from Bengal. Okay, if I talk about more specifically, so he's from Bengal. Okay, so I hope now you understand the concept of the poetry number one, Rhapsody, Abhisara, the Christ. Okay, what is the meaning of Abhisara? As I told you, to spread brightness, to spread happiness. One of the same thing. Okay, and the Christ is the meeting of two guys, not two guys, sorry, meeting of two fellow. Okay, uh, in a very respectful manner. Okay, so who are those two fellow in the poem? I'll tell you. Okay, I don't want to ruin all the fun. Okay, so let's take an introduction of the poet Rabindranath Tagore. As I told you, who do not know him? Such a great personality he was. Okay, obviously he has written many of the things, and the most famous book he has given to us, that is Gitanjali. How we can forget that? Okay, the collection of poems. Okay, we have there are many poems written by this fellow. Okay, and he was not only a poet but a painter too. Okay, so let's take an introduction of him. So Tagore was born in the year 1861 in a middle class Bengali family. As I told you, he is from Bengal. Okay, as the youngest son of Devendranath Tagore. Okay, he is the youngest son of Devendranath Tagore, who is his father, obviously. Okay, and his father Devendranath was the leader of Brahmo Samaj. Okay, he was the leader of Brahmo Samaj. Okay, a religious sect in Bengal in the mid 18th century. At the early age of 17, Rabindranath Tagore started his schooling in England. Rabindranath Tagore received his Nobel Prize in year 1930. Okay, there are many, a big stack of introduction is he's having, like, but here just we are for your information, for your kind information, I am telling you, because now, okay, till 10th you were not having any question regarding the poet. Okay, you were not having any question regarding the poet, but in 11th you might be having the questions regarding this fellow, regarding the poet or the poetess of the poem. Okay, or the short stories. So be careful and take this introduction very, like, seriously, right? Very genuinely. Obviously they could be asked any question regarding Rabindranath Tagore, that where he was born. Okay, where he took his where he done his schooling, where he took his furthermore what education, and many more things they could be asked. So be careful, just read the structure of him, and yeah, this is Rabindranath Tagore's small summary. But more thing about him was that he was a very, like, very diverse person. He want that Indian culture should spread in European country as well. He wants that Indian culture should spread to the European country, to the abroad, and their culture should come in India. Okay, their culture should be introduced in India too, and our culture should be introduced to the abroad countries too. Okay, he wants that. Okay, like he was such a great personality that he was, like, spreading Indian culture to the abroad country and bringing their culture to our India. Okay, and he was generally regarded as the outstanding creative artist of early 20th century. As we have
seen, right? Now, obviously, in 1930, he became the first non-European to receive the Nobel Prize, as I told you, for his Gitanjali. Okay, what is Gitanjali? I have told you a collection of poetry, a collection of poem is referred here as a Gitanjali. Okay, for what he got a Nobel Prize. Okay, he got a Nobel Prize. So I hope now you understood the thing of Rabindranath Tagore. There are numberable summary for him, okay, but we are just discussing some of it, okay. Like he was such a great personality, okay. There can be a questions regarding him, so be careful about this fellow, okay. I'm again and again telling you, means it is important, okay. Next, let's see about the poem. Now, what was the name of the poem? First of all, let's romanticize the name of the poem. Abhisara, the tryst, right? I have told you what is the meaning of Abhisara: to spread happiness, right? What is the meaning of tryst? Like the meeting of two fellow, okay. That is the meaning of the tryst, right? Now, this is a short poem based on Upagupta. Now let's introduce the characters of this poem. There are two characters. The one is an ascetic, is a monk. The name of the monk is Upagupta. And next is who? Next is a girl, a dancing girl, her name is Vaswadatta. Okay, so this is a short poem based on Upagupta, a Buddhist monk. Okay, who was Upagupta? A Buddhist monk. Okay, who lived in the 300 BCE. Okay, who used to live in 300 BCE and was by European Ashoka. It demonstrates the value of love and compassion. Okay, he demonstrates the value of love and compassion that may be found in unexpected persons under unusual circumstances. I hope till here you have completely understood. Okay, ये जो स्टोरी है, ये जो पोम है अभिसारा द ट्राइस, ये एक दो लोगों के बीच में है. एक तो मॉन्क, एक एसिटिक. ओके, एसिटिक का मतलब मॉन्क होता है, ठीक है, जिनका नेम था उपगुप्ता. ओके उनका नेम क्या था? उपगुप्ता. और एक डांसिंग गर्ल है, ओके, जो कि डांस करती है, ऑब्वियसली डांसिंग गर्ल है, उसका नेम था वासवदत्ता. तो ये दो लोगों के बीच में स्टोरी है. ओके, नाउ इन्हीं दो का जो है बॉन्ड यहाँ पे रिवील किया जाएगा. ओके, और ये जो बॉन्ड है ये आप कह सकते हैं केयर का था. दिस बॉन्ड वॉज ऑफ केयर but not of love. Okay, this bond was not of love. This bond love but not that type of love, as I told you. Okay, what's the meaning of love here? Love means like a feeling of care to someone. Okay, love means not in that type. Okay, I'm again saying so that you do not get confused. Okay, now let's see the characters inside Abhisara. As we have seen, the one is the Upagupta, who is a monk, who is an ascetic. Who is the Upagupta? He was an ascetic, a monk. Okay, he was a monk, and one more word is used here, that is ascetic. Okay, that is ascetic. Ascetic means monk, one of the same thing. Okay, next is a girl, Vaswadatta. Who is she? A dancing girl. A dancing girl. Okay, so a dancing girl. What do you mean by a dancing girl? Why this thing? You could relate the thing that this era, obviously this era was of 300 BCE. Okay, this era was of 300 BCE, as we have seen. Okay, this era was of 300 BCE. So at the time they were kings. They used to be kings, and kings used to saw the dance of the dancers, mostly the girl. Okay, nrityanganas, right? In Hindi we used to say. So let's see this portrait first of all.
Now, I hope you can distinguish between Upagupta and Vaswadatta. Right? Who is Upagupta? This fellow. Who is Vaswadatta? This girl. Now, why their postures you could be understood? He is in a meditative way, in a meditative method. Okay, he's applying the meditation. Okay, so obviously he would be an ascetic, right? And her posture tells us that she is a dancer, right? Her costumes, her attires, her postures, her jewels, everything are crystal clear. Okay, they are telling us, they are reflecting to us that she would be a dancer. Okay, her posture of her hands are telling us that she would be a dancer, and the posture of his hands are completely telling us his attires are completely telling us, giving us hint that he would be a monk. He is a monk. He is an ascetic, right? So he is who? He is Upagupta, right? He is Upagupta. Now, who is she? She is Vaswadatta. Okay. Vaswadatta. Who is she? She is Vaswadatta, a dancing girl. Okay. Now, let's see. Let's start the poem Abhisara that tries the whole summary. I hope you are like this was not a summary but just a little introduction, because now you would be dealing this in your class 11, so the questions would be little difficult. And yeah, the pattern of questions would be you're not having the RTC type questions, right? Like refer to context types questions you would not having. Okay, you're not going to have the refer to the types questions, the context types question, like in 10th. Okay, like in 10th, you would be having a paragraph, and within that paragraph, the questions has been asked, and you have to answer according to that. No, this would not be there. Now, in 11th, now you would be having which type of question? Now, you have to complete the sentence. How? Let me tell you. What you need to do, straightforward question would come. What do you mean by an ascetic? Who was Vaswadatta? Who was Upamanyu? So you have to answer that question straightly. Now refer to context types questions would not be there. Remember the thing. Since you are in the 11th class, so I'm aware you about it. Okay, so let's see the poem Abhisara the Christ. Okay, Upagupta, the disciple of Buddha, lay asleep in the dust by the city wall of Mathura. Okay, who is Upagupta? As I told you, the monk, an ascetic. So, the disciple, what do you mean by disciple? Disciple means the student, शिष्य. ओके, तो ये जो उपगुप्ता हैं ये किनके? बुद्धा के शिष्य थे, बुद्धा के स्टूडेंट थे. ओके, जो बुद्धास की प्रीचिंग्स को, बुद्धास की जो रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, जो उनके मार्ग पर चलते हैं, उनके रास्ते पर चलते हैं, उन्हें कहते हैं हम डिसिपल, स्टूडेंट. तो जो उपगुप्ता थे वो बुद्धा के प्रीचिंग्स को मानते थे, बुद्धास के लेसन्स को मानते थे, जो भी बुद्धा कहते थे पहले उन सबको वो मानते थे. ओके, सो एक बार वो मथुरा की सिटी वॉल पर, मथुरा जो है, मथुरा वी ऑल नो मथुरा, राइट? नो वन इज अवेयर, नो वन इज like no one is here who do not know what is Mathura. Okay, everyone knows Mathura. So Mathura, so once he was laying down in the wall of like on the wall of Mathura. Okay, मथुरा जो है, मथुरा सिटी है, उसकी दीवारों पर एक बार लेटे थे कौन? उपगुप्ता. नाउ इन द डस्ट बाय द सिटी. ओके, कहाँ पे? ज़मीन पर लेटे थे. ओके, डस्ट बाय द सिटी का मतलब है जो शहर मथुरा है उसके ज़मीन पर लेटे थे, दीवार से टिके हुए. ओके, एक बार. अब इससे क्या शो होता है? इससे बहुत कुछ शो होता है. इससे बहुत कुछ शो होता है. क्या शो होता है इससे? इससे पहली चीज़ ये शो होता है, इस डस्ट, यहाँ पे जो डस्ट वर्ड दिया है ये, दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट.
ये जो डस्ट वर्ड है दिस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये क्या बताता है, ये उपगुप्ता की क्या बताता है, सिंप्लिसिटी को शो करता है। इट रिफ्लेक्ट्स द सिंप्लिसिटी ऑफ उपगुप्ता की कितने सिंपल हैं और एक मॉन्क होने के नाते वो कितने ज़्यादा सिंपल हैं। और इससे ये प्रूव होता है कि हाँ वो बुद्धास की जो गौतम बुद्ध थे उनकी प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं। ओके, एज बुद्धा वॉज सो सिंपल एंड जस्ट used to do the meditation, same the condition of Upagupta as well. Okay, so here it concluded that he was a real student of, real disciple of Upagupta, like Buddha. Okay, तो ये डस्ट है यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है क्योंकि ये हमें बता रही है कि जो उपगुप्ता हैं वो कितने सिंपल और कितने कितनी सिंप्लिसिटी है उनके अंदर कि वो एक डस्ट पे लेट गए हैं। ओके, एक डस्ट पर बैठ गए हैं। तो ये हर मॉन्क का जो रियल मॉन्क होते हैं ना उन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये उन सब का कैरेक्टर होता है कि उन्हें दे वांट गॉड, दे जस्ट वांट गॉड, नॉट द ईज न पीस। ओके, नॉट ईज द पीस और नॉट द लाइक ऐशो आराम। ओके, ये कुछ नहीं इन्हें चाहिए होता है, वॉट दे वॉन्ट गॉड। ओके, द लव ऑफ गॉड, द कंपैशन ऑफ गॉड। ओके, तो ये जो डस्ट है यहाँ पे ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है। ओके, तो जो उपगुप्ता है वो बुद्धा की स्टूडेंट हैं जो कि मथुरा की बॉल पर, जो मथुरा की जो दीवारें हैं, ओके, उसी पर लेट गए हैं, उसी पर लेटे हुए हैं। ठीक है, डस्ट पर। ऑब्वियसली जो दीवार है नीचे डस्ट ही होगी, कोई बेड या काउच तो बिछा नहीं होगा, राइट। नाउ लैम्प्स वर ऑल आउट, डोर्स वर ऑल शट एंड स्टार्स वर ऑल हिडन बाय द मर्की स्काई ऑफ ऑगस्ट। अब इस चीज़ से इन लाइन से हम पता चला कि दिस इज़ द टाइम ऑफ नाइट, ये रात का समय है क्योंकि सारी की सारी लाइट्स जो हैं वो बंद हो चुकी हैं। लैम्प्स वर ऑल आउट का मतलब लैम्प्स जो हैं, जितनी भी लैम्प्स जली हुई थी वो सब बुझ गई हैं मथुरा में। डोर्स बंद हो गए हैं, सब ने अपने अपने दरवाजे बंद कर दिए हैं। और जो स्टार्स हैं वो मर्की स्काई ऑफ अगस्त, मर्की का मतलब होता है डार्क स्काई। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मर्की? मर्की का यहाँ पे मतलब है डार्क। ओके, मर्की का मतलब है यहाँ पे डार्क। तो जो स्टार्स और मून्स हैं वो सब कहाँ, डार्क अगस्त के डार्क स्काई में छिप गए हैं। ठीक है, ये कौन सा मंथ चल रहा है? अगस्त का। ओके, मंथ चल रहा है। ओके, तो रात का समय, सब मतलब कोई भी उजाला नहीं है। ओके, कहीं से भी कोई भी रोशनी नहीं आ रही, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। ओके, मतलब हर तरफ सिर्फ डार्कनेस है। स्टार्स जो हैं वो सब बादलों में छिप गए हैं। लैम्प्स एंड देयर नो सोर्स ऑफ लाइट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, कोई भी सोर्स नहीं है लाइट का, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। इसका मतलब जो कंडीशन है वो बिल्कुल डार्क है। इतने डार्क में मतलब हम सब डर जाते हैं, राइट? वी यूज टू फ्राइटन, बट दिस फेलो उपगुप्ता, ही इज स्टिल वेरी calm. Why? Because he is an ascetic, he is a monk, and the speciality of a monk, they just need God, as I told you. They do not need any like ease, any peace. They just want God, and they want to worship God. They want to pursue God, right? And this is the characteristic of a real monk, of a real ascetic. Okay. Now, अब यहाँ पे उन्हें किन्हें, उपगुप्ता को कोई आवाज़ें सुनाई देती हैं। ओके, तभी वो क्या कहते हैं, whose feet were those tinkling with anklets touching his breast of a sudden. ओके, मतलब ये किसके फीट हैं, किनके पैरों से आवाज़ आ रही है? ओके, एक्चुअली कोई यहाँ से उपगुप्ता, उस रात के समय उपगुप्ता के पास में किसी की आवाज़ आ रही होती है, किसी के पायल की। एंकलेट्स का मतलब होता है पायल, ठीक है, विच ज्वेल्स विच यूज टू वियर इन द फूट बाय गर्ल्स, ओके, और द विमेन। ओके, तो किसकी जो एंकलेट्स हैं उनकी आवाज़ आ रही होती है। टिंकलिंग मतलब आवाज़ करना, जो उसके वो होते हैं ना घुंघरू, वो आवाज़ करते हैं, टिंकलिंग। ओके, टचिंग हिज ब्रेस्ट ऑफ अ सडन मतलब अचानक से उपगुप्ता की ब्रेस्ट का मतलब है यहाँ पे हर्ट।
ओके। हर्ट, अचानक से ऊपर गुप्ता की हर्ट को टच करती है, जो आवाज़ होती है, जो वो एंकलेट्स की आवाज़ होती है, वो अचानक से ऊपर गुप्ता की ब्रेस्ट उनके हर्ट को टच करती है और वो अचानक से उठ जाते हैं। ही वोक अप स्टार्टलेड एंड लाइट फ्रॉम अ वुमन्स लैम्प फेल ऑन हिज फॉरगिविंग आईज। और वो अचानक से, स्टार्टलेड का मतलब शॉक होकर, ओके, स्टार्टलेड का मतलब स्टन्ड होकर, शॉक होकर, तो वो अचानक से उठ जाते हैं, ओके। और देखते हैं कि उनकी आंखों पे कोई बहुत तेज़, क्योंकि मैंने पहले बताया था कोई भी लाइट का सोर्स नहीं है, तो कोई लाइट लेकर आ रहा होता है, ओके। तो वही लाइट जो है वो उपगुप्ता की आंखों पे पड़ जाती है, ओके। जो उपगुप्ता है उनकी फॉरगिविंग आइज यहाँ पे इसलिए कहा गया है क्योंकि वो एक मॉन्क है, एक एस्थेटिक है, तो बहुत सिंपल हैं, वो हमेशा वर्शिप करते हैं, भगवान को प्रे करते हैं, और इसलिए वो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। उनकी आइज़ में वो फॉरगिवनेस है, वो डिवोटी हैं गॉड के, ये उनकी आइज़ बताती हैं, ओके। तो उनकी जो फॉरगिविंग आइज़ हैं उन पर वो जो लैम्प है, लैम्प की रोशनी होती है वो गिरती है, तभी उनकी सडन ऑफ द सडन एकदम आँख खुलती है, ओके। सो आई होप दिस स्टैंजा इज क्लियर टू यू, ओके। इसमें उनके कैरेक्टर को बताया गया है उपगुप्ता के कि कैसे, किस तरीके का कैरेक्टर है, किस तरीके से सिंप्लिसिटी वो शो करते हैं, एक डस्ट पर मतलब ऐसे ही बैठकर एक सिंप्लिसिटी शो करते हैं। लाइक आजकल के जो मॉन्क्स होते हैं वो थोड़े से ड्रामेटिक होते हैं, क्यों? क्योंकि हम लाइक दे यूज्ड टू सेड दैट दे आर वेरी सैक्रेड, दे डू नॉट सिट ओवर लाइक दिस floor, okay, they are very sacred, their dharma, their karma, everyone will ruin if they sit on the floor, on the dust. So like this, they are very dramatic right now, okay. But Upagupta, he's such a great personality that he is least bothered where he is sitting, just he need a little bit of rest and he is taking that, okay. So I hope this is clear to you, okay. Next, it was Vasudetta, द डांसिंग गर्ल। मैंने पहले बताया था हु इज़ वासुदत्ता, एक डांसिंग गर्ल है जो कि डांस करती है, ठीक है, डांसिंग गर्ल है जो कि शायद वहाँ पे राजा महाराजाएँ हैं, क्योंकि BCE की बात हो रही है ये, तो उस टाइम पे किंग्स होते थे, ओके। तो किंग्स यूज टू सॉ द डांस ऑफ द गर्ल्स ऑब्वियसली, तो वो एक डांसिंग गर्ल है। वासुदत्ता कौन है? एक डांसिंग गर्ल है। स्टियर्ड विद ज्वेल्स, स्टियर्ड का मतलब होता है जड़ी हुई, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टियर्ड? जड़ी हुई। तो जो वासुदत्ता है वो एक डांसिंग गर्ल है। ऑब्वियसली डांसिंग गर्ल कैसी होती हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था, दिस सी दिस पोर्ट्रेट अगेन, ज्वेल्स से पूरी ढकी हुई है ये लड़की जो है, ओके, ज्वेलरीज से ढकी हुई है। ज्वेलरीज ये लोग इसलिए पहनते हैं सो टू एनहांस देयर ब्यूटी, ओके। और उधर एक तरफ उपगुप्ता है हु इज़ वेरी सिंपल, नॉट हैविंग इवन वन like locket in his neck, he is very simple, right? So this shows his simplicity, while he is obviously a dancing girl, so he's little notorious, right? So she used to attract the men's, okay, she used to attract the men's because she is a dancing girl, and we all know what is the characteristic of a dancing girl, right? So she was Vasudetta, a dancing girl who was loaded with ज्वेल्स। स्टियर्ड मीन्स लोडेड, जड़ा हुआ, ओके। क्लाउडेड विद अ पेल ब्लू मैंटल, ड्रंक विद द वाइन ऑफ हर यूथ, ओके। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब अपने यूथ से, जो अब यूथ है इसकी, ओके, अपनी यंग एज से सबको ये अट्रैक्ट करती है, हर मैन को ये अट्रैक्ट करती है। नो मैन एक्सेप्ट दिस सेंट, except this ascetic has left who has not attracted by this girl, okay, except Upagupta, every man are attracted with this girl, okay. तो this mean कि वो अपने जो यूथ है, जो अपने यंग एज है, जो अपनी यंग ब्यूटी है, उससे लोगों को, स्पेशली मेल्स को, मेंस को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। She lowered her lamp and saw the young face externally beautiful, okay। अब क्या करती है वो? अब लैंप लेकर, ऑब्वियसली रात का टाइम है तो वो
कोई लाइट का सोर्स लेकर आ रही है, लैंप लेकर आ रही होती है, जो ये वाष्पदत्ता है, ठीक है। और वो अपनी लैंप को नीचे करती है और एक यंग फेस की तरफ देखती है। किन की तरफ देखती है? उपगुप्ता की तरफ देखती है, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल फेस उसे दिखाई दे रहा था। किनका? उपगुप्ता का बहुत ही ब्यूटीफुल फेस था। एक्सटर्नली ब्यूटीफुल मीन्स वेरी अट्रैक्टिव। ओके, बहुत ही ब्यूटीफुल फेस। वो एकदम मोहित हो गई, जो उनकी सिंप्लिसिटी देखकर, उपगुप्ता की सिंप्लिसिटी देखकर वाष्पदत्ता जो है वो मोहित हो जाती है, ठीक है। Forgive me, young ascetic, said the woman graciously. Come to my house. The dusty earth is not a fit bed for you. ओके, क्या कहती है? माफ़ कर दीजिए मुझे यंग एस्थेटिक। एस्थेटिक का मैंने पहले ही मतलब बता दिया है, सेंट। ओके, कौन? मॉन्क, सेंट, जो साधु होते हैं उन्हें कहते हैं एस्थेटिक। ओके, तो जब वो फेस देखती है तो उससे दिखाई देता है कि ये तो एक सेंट है, एक मॉन्क है, तो वो उनसे माफ़ी मांगती है। फॉरगिव मी यंग एस्थेटिक, मुझे माफ़ कर दीजिए यंग एस्थेटिक, सेड द वुमन। अब यहाँ पे वो माफ़ी क्यों मांग रही है? यहाँ पे माफ़ी इसलिए मांग रही है क्योंकि उसने उनकी नींद को खराब कर दिया था, इसलिए वो उनसे माफ़ी मांग रही है, ठीक है। तो कहती फॉरगिव मी यंग एस्थेटिक, सेड द वुमन। वुमन कहती ग्रेसियसली कम टू माई हाउस, प्लीज़ कम टू माई हाउस। ग्रेसियसली का मतलब होता है प्लीज़, काइंडली। ओके, विनय से, विनय पूर्वक, नम्रता से, लाइक इन हिंदी वी यूज्ड टू से। ओके, तो प्लीज़ कम टू माई हाउस, द डस्टी अर्थ इज़ नॉट अ फिट बिट फॉर यू। वो जान चुकी थी कि ये बहुत ही बड़े साधु हैं, बहुत ही अच्छे साधु हैं, तो इसलिए कहती है कि प्लीज़ आप मेरे घर पे आइए, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये आपके लिए सही नहीं है, इस पर आप मत लेटिए, ये आपके लिए सही नहीं है। ओके, ये आपके लिए सही बेड नहीं है। ओके, नेक्स्ट, द यंग एस्थेटिक आंसर्ड। अब जो यंग मॉन्क है वो आंसर करते हैं, वुमन गो ऑन योर वे। वुमन, आप जहाँ जा रही हैं आप जाइए, मतलब अपने घर जाइए आप भी। ओके, बहुत ही अच्छी तरीके से आंसर देते हैं कि प्लीज़, वाष्पदत्ता से कह रहे हैं प्लीज़ आप अपने घर जाइए। ओके, व्हेन द टाइम इज़ राइट आई विल कम टू यू, मतलब जब सही समय आ जाएगा। टाइम इज़ राइट का मतलब है जब सही समय आ जाएगा तब मैं आपके घर स्वयं आऊँगा, खुद आऊँगा। ओके, तब मैं आपके घर खुद आऊँगा। Then suddenly the black night showed its teeth in a flash of lightning. What does it mean? अब सडनली वो अचानक से जो ब्लैक, क्योंकि जो स्काइज थे वो बहुत ब्लैक थे, लाइक दे वर डार्क, तो उस जो डार्क स्काइज होते हैं वो अचानक से अपने दांत दिखाने लगते हैं। अब इज़ इट पॉसिबल टू लाइक कि जो स्काइज है वो दांत दिखाते हैं? इसका मतलब यहाँ पे ये है कि वो जो स्काई है उनमें लाइटनिंग होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है। ओके, नाउ सडनली द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ इन अ फ्लैश ऑफ लाइटनिंग। जैसे कि मैंने बताया, जो ब्लैक स्काइज होते हैं, जो मर्की स्काइज होते हैं, वो सडनली क्या करने लगते हैं? लाइटनिंग होने लगती है उनमें। ओके, द ब्लैक नाइट शोड इट्स टीथ का मतलब है यहाँ पे लाइटनिंग होना, ठीक है। लाइटनिंग होने लगती है, बिजली कड़कने लगती है उन काले बादलों में से। ओके, क्योंकि जो मंथ है वो अगस्त का चल रहा है और वी नो अगस्त में थोड़ी रेनिंग होने लगती है। अगस्त जो है वो एक रेनी सीजन होता है, राइट। तो वहाँ रेनिंग होने के एटमॉस्फेयर बनने लगते हैं, लाइटनिंग होने लगती है, स्टॉर्म्स आने लगते हैं, ठीक है। द स्टॉर्म ग्लोड फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई एंड द वुमेन ट्रेम्बल्ड इन फियर। जो स्टॉर्म होता है वो चारों तरफ से, जो स्काई है उसके चारों तरफ से इकट्ठा होने लगता है। ओके, फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ द स्काई मतलब चारों तरफ से इकट्ठा हो रहा है, और उनकी आवाज़ सुन के, जो स्टॉर्म है, जो तूफान है, उसकी आवाज़ सुन के जो गर्ल है वाष्पदत्ता वो डर जाती है, ठीक है, ट्रेम्बल हो जाती है। ट्रेम्बल इन फियर मतलब कांपने लगती है डर से। ऑब्वियसली गर्ल्स आर हैविंग दिस हैबिट। ओके, गर्ल्स की हैबिट होती है कि जो लाइटनिंग हो या स्टॉर्म हो या कुछ भी ऐसा नेचुरल क्लैमिटी हो तो वो डर जाती हैं, राइट। यू हैव सीन इन सीरियल्स एज वेल। तो ऐसे ही यहाँ पे वाष्पदत्ता हैं जो कि लाइटनिंग होने पर डर जाती हैं, जो गड़गड़ाहट होती है किसकी, थंडरिंग होती है जो क्लाउड्स की, तब डर जाती है वाष्पदत्ता। और एक रीज़न ये है कि रात का टाइम है तो ऑब्वियसली वो डर जाती है, अकेले आ रही होती है। ओके, नाउ ये तो बात थी हमारी एक मतलब कुछ समय पहले की, कुछ महीनों पहले की। अब यहाँ पे कुछ महीने, कुछ 4 से 5 महीने या 7 से 8 महीने हो चुके हैं। अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 8 मंथ्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इनकी दोबारा
मीटिंग होगी, अब इनकी दोबारा मिलन होगा, इनको दोबारा से इनका मिलन होने वाला है, इसीलिए इसका नेम क्या बताया था मैंने, थ्राइस्ट। थ्राइस्ट का मीनिंग होता है मिलन, मिलना। ओके, और इसीलिए ये अप्रोप्रिएट है क्योंकि इनका इन दोनों का मिलन होता है, किनका, वासवदत्ता और उपगुप्ता का। ओके, तो 1 ईयर हैज़ नॉट पास्ड, मतलब 1 साल अभी नहीं हुआ होता है। ओके, कुछ महीने ही हुए होते हैं, अब जो है इनका मिलन दोबारा होगा। ओके, नाउ इट वॉज इवनिंग ऑफ द डे इन अप्रैल इन स्प्रिंग। अभी कौन सा महीना चल रहा था, अगस्त का, एंड इट वॉज रेनी सीजन, राइट, यू कुड सी हेयर एज वेल। ओके, अगस्त का मंथ चल रहा था। ओके, और कौन सा था ये, रेनी सीजन चल रहा था। अब कौन सा मंथ चल रहा है, अब हो रहा है अप्रैल मंथ। ओके, अप्रैल मंथ चल रहा है और स्प्रिंग सीजन चल रहा है। ओके, सो द 9 months हैव बीन पास्ड, 9 महीने पास्ट हो चुके हैं। ओके, और अगस्त से अप्रैल आ गई है। ओके, अगस्त पे कौन सा चल रहा था, रेनी सीजन। ओके, जो सीजन ऑफ रेनी सीजन चल रहा था, एंड अब अप्रैल में कौन सा सीजन चल रहा है, इट इज़ द सीजन ऑफ स्प्रिंग, राइट, स्प्रिंग सीजन चल रहा है। सो 9 months हैव बीन पास्ड। ओके, फ्रॉम अगस्त टू अप्रैल 9 months हो चुके हैं। ओके, सो इट वॉज द इवनिंग ऑफ डे इन अप्रैल इन स्प्रिंग। ओके, अप्रैल की दिन की शाम थी ये। ओके, और कौन सा वो चल रहा था, स्प्रिंग सीजन चल रहा था। द ब्रांचेस ऑफ द वे साइड ट्रीज वर फुल ऑफ ब्लॉसम। ओके, जो ब्रांचेस थी बे साइड ट्रीज की, बे साइड मतलब साइड वाले जो रास्ते के साइड में, जो जैसे ये रास्ता है, इनके साइड में जो ये ट्रीज होते हैं लगे हुए, राइट, ये जो साइड में ट्रीज होते हैं, इनकी जो ब्रांचेस थी उन पर फ्लावर्स आए थे, उन पर क्या थे, फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स से वो पूरी फिल हो गई थी। ओके, ब्लॉसम्स का मतलब फ्लावर्स होता है, आई होप यू नो दैट। ओके, ब्लॉसम्स का मतलब होता है फ्लावर्स। ओके, क्योंकि ये स्प्रिंग सीजन है तो ऑब्वियसली स्प्रिंग सीजन क्या होता है, जिसमें फ्लावर्स आते हैं, न्यू लीव्स आती हैं, मतलब न्यू लीव्स मतलब न्यू बर्थ होता है, और न्यू बर्थ के साथ साथ उपगुप्ता और वासवदत्ता का नया मिलन भी होगा। ओके, सो गे नोट्स ऑफ अ फ्लूट Gay notes of a flute came floating in the warm spring air from afar. Okay, क्या हो रहा है, गे नोट्स, गे का मतलब क्या होता है, हैप्पी, एज आई टोल्ड यू। ओके, तो फ्लूट जो होती हैं, ओके, फ्लूट की जो आवाज़ हो रही होती है, बहुत प्यारी सी आवाज़। ओके, वो कहाँ से आ रही होती है, स्प्रिंग की, जो वार्म स्प्रिंग की एयर होती है वहाँ से। ऐसा लग रहा था जैसे कि स्प्रिंग एयर जो है, जो स्प्रिंग मंथ है, स्प्रिंग सीजन की एयर है, वो बहुत ही अच्छी आवाज़ निकाल रही हो, लाइक अ फ्लूट। ओके, कोई फ्लूट, कोई बांसुरी बज रही हो। ओके, गे का मतलब हैप्पी होता है, एज आई टोल्ड यू। ओके, सो ऐसा लग रहा था दूर से जो स्प्रिंग सीजन है वो फ्लूट बजा रही हो। ओके, बांसुरी बजा रही हो। ओके, द सिटीजन्स हैड गॉन टू द वुड्स फॉर द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। और जो सिटीजन्स थे वहाँ के, मथुरा के जो पीपल थे, मथुरा के जो रहने वाले थे, वो कहाँ गए थे, वो फेस्टिवल मनाने गए थे फ्लावर्स का, क्योंकि एक स्प्रिंग सीजन है, यहाँ पे न्यू फ्लावर्स उगते हैं, न्यू लीव्स उगती हैं, तो यहाँ पे कोई फेस्टिवल होता होगा इन लोगों का, वो मनाने गए थे। इसका मतलब पूरे सिटी में कोई नहीं था, होल सिटी वॉज एम्प्टी, पूरा सिटी क्या था, खाली था, बिल्कुल एक सिटीजन नहीं था, जस्ट एक्सेप्ट उपगुप्ता एंड वासवदत्ता, राइट। सो नेक्स्ट, फ्रॉम द मिड स्काई गेज द फुल मून ऑन द शैडो ऑफ द साइलेंट टाउन। मतलब वो जो साइलेंट टाउन था, क्योंकि उधर कोई नहीं था। ओके, उसमें से जो स्काई है, स्काई में से जो मून है, वो जो आसमान से ऐसा लग रहा था जैसे कि जो चांद है वो देख रहा हो। गेज मतलब देखना। ओके, एक एक मतलब बिना ब्लिंक किए देखना, उसे हम कहते हैं गेज्ड। ओके, एक टक देखना, राइट। द यंग एस्थेटिक वॉज वॉकिंग इन द लोनली स्ट्रीट। अब यहाँ पे यंग एस्थेटिक, वही जो एस्थेटिक हमें 9 महीने पहले मिले थे। ओके, वो दोबारा से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो मॉन्क हैं, वो जो कौन, वो जो अब उपगुप्ता हैं, सॉरी, वो जो उपगुप्ता हैं, वो लोनली स्ट्रीट्स पे घूम रहे होते हैं, खाली स्ट्रीट्स पे घूम रहे होते हैं। ओके, जहाँ पे कोई नहीं था, राइट। वाइल ओवर हेड द लव सिक coals uttered from the mango branches their sleepless plaint. Okay,
और तभी जो ब्रांचेस होती हैं किसकी, हमारे इसकी मैंगो ब्रांचेस होती हैं, जो मैंगो की ब्रांचेस होती हैं उसमें से कोयल जो होती है, कोल्स मतलब कोयल, कि जो कोयल होती है, ओके, बुलबुल, ओके, वी यूज्ड टू से इन इंग्लिश, वो अटर कर रही थी, अटर मीन्स बोल रही थी, ओके। द स्लीपलेस प्लेंट, द स्लीपलेस प्लेंट मतलब, प्लेंट का मतलब होता है सैड, तो वो बोल रही थी कहाँ से, फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ मैंगो ट्रीज, ओके। उपगुप्ता पास थ्रू द सिटी गेट्स एंड स्टूड एट द बेस ऑफ द रामपार्ट। जो उपगुप्ता हैं वो मथुरा के गेट से बाहर निकल आते हैं और रामपार्ट के बेस पे खड़े हो जाते हैं। रामपार्ट मीन्स चौखट, रामपार्ट का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ चौखट की तरह, ओके, जैसा होता नहीं है, जैसे रामपार्ट मतलब द गेट ऑफ इंडिया, ओके, सॉरी, न्यू दिल्ली में द गेट है, वो कौन सा, आई फॉरगॉट, सॉरी, ओके, वो जो है, ओके, तो वो ही समझ लो, दैट इज़ द स्ट्रक्चर, ओके, रैम्पार्ट, उसका मतलब होता है रैम्पार्ट, ओके, जो कैसल का वॉल होती है, जो, ओके, महल की जो वॉल होती है उसे हम रैम्पार्ट कहते हैं। तो उपगुप्ता वहीं से गुजर रहे थे, ओके, उधर ही खड़े हुए थे रैम्पार्ट की तरफ, ओके। वॉच वुमन ले एट हिज फीट इन द शैडो ऑफ द मैंगो ग्रूव, मतलब अब उपगुप्ता कहते हैं कि ये कौन वुमेन है, ओके, ये कौन वुमेन है जो कि मैंगो ग्रुप पर, मैंगो के पेड़ पर बैठी हुई है, ओके, लेटी हुई है, ओके। उन्हें मैंगो ट्री की परछाई में किसी के पैर दिखाई दे रहे होते हैं, तो वो कहते हैं उपगुप्ता कि ये कौन वुमेन है, ओके, जो मैंगो ट्री पे लेटी है, मैंगो ट्री के नीचे लेटी है, ओके। स्ट्रक विद द ब्लैक पेस्टिलेंस, हर बॉडी स्पॉटेड विद द सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, ओके, उनकी पूरी बॉडी पे, वो जो वुमेन थी उसकी पूरी बॉडी पे ब्लैक निशान्स हो गए थे, ब्लैक स्कार्स हो गए थे, ओके, विच वर ब्लैक पेस्टिलेंस, सॉरी, ब्लैक पेस्टिलेंस का मतलब होता है ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाना, सोर्स लाइक स्पॉट्स हो जाना, ओके। हर बॉडी स्पॉटेड विद सोर्स ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसकी बॉडी पे क्या हो गए थे, स्मॉल पॉक्स हो गए थे, ओके, चिकन पॉक्स, जो चिकन पॉक्स होते हैं उन्हें, ओके, वो हो गए थे पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी जो है उसकी चिकन पॉक्स से मतलब भरी हुई थी। अब वो जो लेडी थी जिसे डिजीज़ हुई है, ओके, ये पता है कौन थी, शी वॉज दैट गर्ल, दैट डांसिंग गर्ल, वासवदत्ता, ओके, वो कौन थी, वासवदत्ता थी, डू यू नो दैट, ओके, लास्ट में अभी पता चलेगा पर मैंने अभी बता दिया, ठीक है। वो कौन थी, वासवदत्ता थी, जो कि डांसिंग गर्ल थी, ओके। तो वो कहाँ थी, मथुरा के जो रैम्पार्ट है, मतलब रैम्पार्ट मतलब जो कैसल का वॉल है उसके बाहर थी, मतलब मथुरा एक कैसल मतलब एक जो रैम्पार्ट होता है वो बताता है कि ये हमारे सिटी का एंड है, ये लास्ट गेट है हमारे सिटी का। रैम्पार्ट से उस वाली जगह को हम दूसरी जगह पे दूसरा नाम दे देते हैं। तो जो रैम्पार्ट थी वो उस रैम्पार्ट के बाहर थी, ओके, वासवदत्ता, इट्स मीन उसे गांव से और शहर से, सॉरी गांव से नहीं, उसे शहर से निकाल दिया गया था, उसे मथुरा से निकाल दिया गया था। क्यों? क्योंकि एट दैट टाइम, एट द 300 BC, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था, इट वॉज नॉट हैविंग एनी क्योर, ओके, कोई भी इलाज नहीं था, इसीलिए, और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है एज वी नो, ओके, दिस इज़ अ कम्युनिकेबल डिजीज़, ये एक दूसरे में फैल जाती है, तो इसीलिए इसे यहाँ से बाहर निकाल दिया गया था जिससे कि और लोगों में ये डिजीज़ नहीं फैले, ठीक है। सो शी हैड बीन हडनली ड्राइविंग अवे फ्रॉम द टाउन, जब उसने देखा कि कोई मतलब आ रहा है उसकी तरफ, तो वो जल्दी से टाउन से भाग जाती है, ओके, सॉरी नो, शी हैड बीन हडनली ड्राइविंग अवे फ्रॉम द टाउन, और इसलिए क्योंकि उसे बीमारी हो गई थी इसलिए उसे टाउन से बाहर निकाल दिया गया था लोगों के थ्रू, ओके, लोगों ने उसे बाहर निकाल दिया जिससे कि ये बीमारी और लोगों में नहीं फैल जाए, ओके। उस टाइम पे ये कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, बट अब तो इसका एक अच्छा खासा इलाज है, ओके, अब तो ये बिल्कुल ठीक हो जाती है, पर एट 300 BC इसका कोई इलाज नहीं था और ये कम्युनिकेबल डिजीज़ थी, इसलिए लोगों को या तो बाहर फेंक दिया जाता था या तो मार दिया जाता था, ओके। सो तो इसको वासवदत्ता को जो सिटी है मथुरा, वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, जस्ट अबाउट द फैक्ट बिकॉज शी वॉज हैविंग दिस डिजीज, राइट, टू अवॉइड हर पॉइजनस कॉन्टेजियम, ओके, टू अवॉइड हर पॉइजनस कॉन्टेजियम, जिससे ये जो
डिजीज़ है ये और लोगों में नहीं फैल जाए। ओके, इसलिए वासवदत्ता को इस शहर से, मथुरा से बाहर निकाल दिया गया था। कहाँ? एक मैंगो ट्री के नीचे बैठी थी और लेटी हुई थी वासवदत्ता। ओके, द एसिडिक सेट बाय हर साइड टुक हर हेड ऑन हिज नीज। अब जब वो एसिडिक, जो वो उपगुप्ता थे, ओके, जब वो उपगुप्ता देखते हैं इस गर्ल की कंडीशन, तो उन्हें बहुत तरस आ जाता है। एज वी नो, ही इज़ एन एसिडिक, ही इज़ अ सेंट, राइट। वो कौन है? सेंट हैं, एक एसिडिक हैं, एक मॉन्क हैं। तो उन्हें बहुत तरस आ जाता है और वो उस वुमेन के पास में मतलब बैठ जाते हैं और उसका सिर अपने थाई एरिया पे रख देते हैं। ओके, अपने नी एरिया पे रखते हैं और फिर क्या करते हैं? लेट्स सी। And moistens her lips with water and smeared her body with balm। और उसे कुछ पानी देते हैं। ओके, उसे पानी, क्योंकि कोई भी उसे छूता नहीं था, तो वो बहुत भूखी थी और बहुत प्यासी थी। शी वॉज स्टारविंग। ओके, शी वॉज स्टारविंग, शी वॉज फेमिस्ड। वो कैसी थी? फेमिस्ड थी, स्टारविंग थी। स्टारविंग का मतलब भूख से मरना। ओके, तो शी वॉज स्टारविंग एंड शी वॉज ट्रस्टी टू। ओके, क्योंकि कोई भी उसके पास जाता नहीं था डर की वजह से कि कहीं ये बीमारी हमें नहीं फैल जाए। तो बहुत प्यासी थी और बहुत भूखी थी। तो उपगुप्ता क्या करते हैं? वो अब उसका सिर जो है वो अपने लाइक साइड में रख देते हैं और उससे थोड़ा सा पहले पानी पिलाते हैं और फिर बाम लगाते हैं उसके जख्म पर, उसके जो बूंद हो रहे होते हैं उन पर बाम लगाते हैं। ओके, स्मेयर्ड हर बॉडी विद बाम का मतलब है बाम से उसकी बॉडी ढक देते हैं। ओके, हु आर यू मर्सीफुल वन आस्क्ड द वुमेन। अब जो वो वासवदत्ता थी, ओके, अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है कि वुमेन जो है वो वासवदत्ता है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ फॉर द क्लियरिटी ऑफ योर सेल्फ। ओके, तुम्हारी क्लियरिटी के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये कौन है। ओके, तो हु आर यू मर्सीफुल वन आस्क्ड द वुमेन। अब जो वो वासवदत्ता है वो क्या पूछती हैं कि आप कौन है मर्सीफुल, आप इतने दयालु कौन है जो मुझे पानी पिलाया और मेरे बूंद पर आपने बाम लगाया। ओके, क्योंकि कोई उसे छूता नहीं था ऑब्वियसली। ओके, कोई उसे छूता नहीं था। तो जब लाइक उपगुप्ता ने उन्हें छुआ तो वो कहने लगे कि आप मर्सीफुल कौन है जो आपने मेरे बूंद पर बाम लगाया। ओके, द टाइम एट लास्ट ही कम टू विजिट यू एंड आई एम हियर वासवदत्ता, रिप्लाई द यंग एसिडिक। अब यहाँ पे पता चलता है उस वुमेन को, जब वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। कौन? वो एसिडिक। ओके, वो जो सेंट है। ओके, द टाइम एट लास्ट हैज़ कम टू विजिट यू एंड आई एम हेयर वासवदत्ता, रिप्लाई द यंग एसिडिक। मतलब जो लास्ट टाइम आपसे मिला था, मैं वो हूँ जो लास्ट टाइम आपसे मिला था। ओके, मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था, मैं वासवदत्ता हूँ। ओके, वो कौन है? वासवदत्ता हूँ। क्या कहते हैं वो? मैं वासवदत्ता हूँ। ओके, रिप्लाई द यंग एसिडिक। जो मॉन्क होते हैं वो रिप्लाई करते हैं कि आई एम वासवदत्ता। ओके, एंड हियर दिस स्टोरी एंड्स। और यहाँ पे जो एक बॉन्ड बताया गया है, यही बॉन्ड इन दोनों के बीच में जुड़ा है। ओके, दिस इज द बॉन्ड ऑफ लव। लव किस तरीके का लव? जैसे मैंने पहले बताया था। ओके, दिस इज नॉट अ लव ऑफ कपल। ओके, कपल वाला लव नहीं है। दिस इज अ लव ऑफ लाइक केयर, ऑफ कंपैशन, ऑफ केयर। ओके, क्योंकि जो पहले जो मतलब पहले क्या हुआ था, पहले वासवदत्ता ने उपगुप्ता की मदद की थी। क्या कहा था कि ये जो डस्टी अर्थ है ये आपके लिए फिट नहीं है, आप मेरे साथ मेरे घर पे चलिए, वहाँ पे आप आराम से लेट जाइए। ओके, तो इस तरीके से उन्होंने मदद करी इस सेंट की। और आज इस सेंट ने मीन्स इस उपगुप्ता ने वासवदत्ता की मदद की बाय ड्रिंकिंग हर सम वाटर, सिप हर सम वाटर एंड बाय अप्लाइंग सम स्टफ ओवर हर वुंड। ओके, एंड इसीलिए यहाँ पे द ट्राइस्ट का मतलब बताया गया है कि एक बॉन्ड है, एक केयर का बॉन्ड है यहाँ पे। ओके, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ ट्राइस्ट। ओके, आई होप now you understood the concept of this poem. Okay, so that's it. I hope now everything is clear to you. Okay, this poem is such an interesting poem. Okay, and ये जो bond है, okay, इन दोनों के बीच का, this bond is of love. Okay, care, compassion, etc. और भी चीज़ें जुड़ सकती हैं इसके साथ।
Okay, so I hope now you understand the poem. Okay, the Upagupta and Vasudetta. Okay, and Abhisara, the Twice by Rabindranath Tagore. If you love this video, then don't forget to give this video a big like, press the bell icon, and subscribe to our channel if you haven't do it. So that's it. Bye bye. Stay tuned for more videos. Bye bye.